So, good morning, everyone. Uh, Good morning, class 11th. Today, we'll be looking at exercise 4.2. 4.2 is basically dependent on how to solve questions on principle of mathematical induction. We did talk about basic things about mathematical induction. In this exercise, we'll be learning how to solve questions that are based on mathematical induction. Okay, but before going to the questions, I'll really like you guys to take an example out of your books as well. I'm not example to solve, just example to look at. So if I have kept so many tiles, okay, in a stack, and for example, let's say there's a very little gap between all the tiles, very little gap between all the tiles, and the very first tile, I push one of the very first tile, okay, the very first tile I push it, and it falls down, right? It falls down. Okay, it's gonna hit the other one, and the other one is gonna fall down, and then the other one is gonna fall down. So like this, all the tiles that are standing in the queue are gonna fall down. You guys agree with that, right? So in this, what was my definition? What was my definition about induction? Induction was general to particular. Was it like that? No, particular to general. So I'm gonna take a particular thing and I'm gonna generalize that if the first one is falling, then all of them are falling. Or if first one, and then I'm gonna take the seventh one. Just take an example, seventh one. Okay, if first one is falling and the seventh one is falling, so obviously seventh के बाद क्या आता है? 8th. 7 plus 1 8. So 7 plus 1 वाला भी गिर रही होगा. Okay, so I'll just generalize. I'll take the particular one, okay, and I'll generalize that all of them will be falling, or the successor will be falling. So the first tile, I'll push it and I'll make sure that it falls, okay, and if it falls, it means the second one will also be falling. If the first one falls, the second one will be falling. And if I see the seventh one, if the seventh one falls, then seventh के बाद वाला भी, the seventh का successor क्या होता है seventh का? 8th. Okay, so 8th one will be falling too. So same like this, first tile falls. In the event that any tile falls, its successor necessarily falls. The successor necessary falls means what we are trying to convey a message over here is this, that अगर आपकी cycles भी अगर line से खड़ी है, let's say आपकी साइकिल स्टैंड होता है, राइट, और आपकी साइकिल्स भी खड़ी है, तो अगर आपकी साइकिल खड़ी है, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल दैट आई गॉट फ्रॉम वन ऑफ द वीडियोस, दैट अगर आप एक साइकिल को गिराते हो, पहली वाली आपने देखा गिरते हुए, और आप जैसे 50वीं साइकिल में गए और 50वीं साइकिल भी गिर रखी है, इसका मतलब 50 के बाद जो साइकिल आएगी सक्सेसर, मतलब ये वाली 50 + 1 वाली 51st वाली साइकिल जो होगी वो भी गिरी होगी. So I'm taking particular. I took the first one, I took the 50th one, and I'm generalizing that 51st cycle will also be falling down or fallen down. अगर 300 साइकिल गिरी है तो I'll generalize कि 300 वाली साइकिल जो 300 नंबर पे वो गिरी हुई है, मतलब जो जनरलाइज में ये बताऊंगा कि जो 300 फर्स्ट वाली साइकिल है, दैट इज ऑल्सो बी फॉलन डाउन. Okay, now this is the basic thing over here. So I tried for first one. I put 1 as a value in place of n, and then I prove it कि 1 के लिए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Okay, some of you won't understand like that, but you will understand through the example. But we'll just go through in a sequence, and then we'll do some questions and examples as well, so that you guys can understand. Now, how to solve questions on principle of mathematical induction. सबसे पहले पी एन दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, पी एन की वैल्यू दी जाएगी और द इक्वेशन और द स्टेटमेंट दी जाएगी. ओके, स्टेटमेंट दी जाएगी, तो आपको पहले क्या प्रूव करना है, उसके लिए P1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है. ओके, विल डू दैट एंड विल कम बैक एंड लुक इन दिस. सो 2 स्टेप है आपके पास. सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना है, P1 के लिए प्रूफ करना है. ओके, सेकेंड वन आपको क्या प्रूफ करना है कि Pm+1 इज ट्रू. हमें ये प्रूफ करना है Pm1+ इज ट्रू. ओके, तो क्या 2 सीक्वेंस करने हैं. फर्स्ट वेरीफाई द रिजल्ट फॉर P1 इज ट्रू और नॉट, एंड देन एज्यूम दैट द रिजल्ट टू बी ट्रू फॉर NM. N एंड M के लिए ट्रू एज्यूम करो कि लेट
n के लिए भी ट्रू है एंड m के लिए भी ट्रू है. Okay, and then prove the result by p m plus 1 is also true. Okay, if you didn't got that, I'll do an example. If you didn't got that example, I'll do the second example and definitely you'll be able to get it. Okay, but please make sure that you guys are doing questions with me. Please make sure that as I'm doing the examples, do the examples with me and you'll also understand. So the very first example that I'll be doing it for you guys is example number 2. Okay, example number 1 I won't be doing because it's quite easy, so I'll take example number 2. So it says prove by induction method. Question are gonna come like this in exam: prove by induction method, and the from chapter of deduction it's gonna come prove by deduction method. So right now they have told me to prove through induction method. 1 plus 5 plus 9 plus dash 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 plus 4n minus 3 equals to n 2n minus 1 for all n belongs to natural numbers. ठीक है, now this is pn, you all know this is pn. Let's first prove it for p1. Okay, let us prove it for p1. तो मैं यहाँ पे तो 1, अगर 1 डालना है तो 1 तो यहीं पर है बस एक, और कहीं तो 1 नहीं है, तो मैं ये 1 ले लूँगा. बट आई विल मेक श्योर कि उस तरफ भी 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो n की जगह मुझे क्या डालना है? 1. 2 into 1 minus 1. So 1 equals to 1, 2 1 are 2, और 2 में से 1 गया 1, और 1 into 1 1. So is it true for 1? So सबसे पहले मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है? 1 पुट करनी है. अगर आपको इसमें वैल्यू पुट करना मज़ा नहीं आ रहा है तो आप इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हो, जो इक्वेशन के इस तरफ है. 4 into 1 1 minus 3 1 आ जाएगा. ओके, आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट. एंड देन इस इधर भी क्या करना है आपको? 1 की वैल्यू डालनी है. पूरे इक्वेशन में n की 1 वैल्यू डाल देना. ओके, यू जस्ट टेकिंग 1 ऑन दिस साइड, और उस तरफ आपको 1 प्रूव करना है. हैंस इट्स ट्रू फॉर p1. ओके, इट्स ट्रू फॉर p1. लेट इट बी ट्रू फॉर p m ऑल्सो. सो पी एम की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस 4m माइनस 3 होल ब्रैकेट इक्वल्स टू m 2m माइनस 1. ये इक्वेशन 1 लिख दीजिए आप. ओके, ये इक्वेशन क्या लिख दीजिए आप? 1. अब मैं m प्लस 1 के लिए ढूंढूंगा. फॉर m plus 1. I'm going to turn my page and do it over there because now it's the crucial part. So p m plus 1. अब मैं p n की जगह क्या डाल रहा हूँ? m plus 1. सो कितना आ जाएगा मेरे पास? 1 plus 5 plus 9 plus dot 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 4 m माइनस 3 प्लस 4m की जगह क्या डाल रहा हूँ? m प्लस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू, मैं इक्वल के बाद वाला नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है, इक्वल के बाद वाला मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ. ओके, आप बोलोगे सर आपने करा क्या ये? ठीक है, अब मैंने क्या करा भाई? देखो, मैंने m था मेरे पास, मैंने m में बस 1 ऐड करना था. जब मैं 300 वाली साइकिल को देखूंगा गिर रही है कि नहीं गिर रही है, या 300 वाले टाइल्स को देखूंगा, तो मैं उसके बाद 301 वाले टाइल्स को भी देखूंगा. तो ये 300 तक टाइल्स है, फिर 301 के लिए मैंने 1 ऐड कर दिया m में. ओके, आई एडेड 1. ओके, सो यहाँ तक तो सेम इक्वेशन रहेगी, प्लस फिर जब नेक्स्ट बार m आएगा तो उसके पास 1 ऐड हो जाएगा जहाँ भी m आएगा. ओके, इज इट ओके एवरीवन? ओके, नाउ आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन 1 में भी था, और इसकी वैल्यू गिवन है आपको. अगर आप इक्वेशन 1 में जाओ, आप इक्वेशन 1 में देखो, इक्वेशन 1 में इतने इतने की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो इसकी वैल्यू यहाँ उतार दो. कितनी है आपकी वैल्यू? उसके m 2m माइनस 1.
राइट, यही वैल्यू है इक्वल्स टू, आप देखोगे फर्स्ट इक्वेशन में, आप बुक में भी देख सकते हो, दिस इक्वल्स टू ये है। तो मैंने इसको ना लिख के मैंने ये लिख दिया, बिकॉज मुझे नहीं पता बीच में कितने नंबर्स है, तो मुझे डायरेक्टली उसका आंसर पता है, प्लस 4m+1 -3। ओके, ये तो इसकी वैल्यू तो गिवन है, क्योंकि ये तो मैंने अभी लिखा है m+1 करके, इक्वल्स टू मुझे आंसर आएगा क्या। पर आपको पता है, आपको ये हो सकता है कि आपको आंसर लाना क्या है, ठीक है। तो एक बार हम ये देख लेते हैं मुझे आंसर लेके क्या आना है, ठीक है। आप ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करके एक आंसर लेके आएंगे जो बिल्कुल किसके इक्वल होना चाहिए, जो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, ठीक है। आप बुक में देखोगे कहीं भी राइट हैंड साइड वाला लिखा नहीं है, पर मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ कि आप सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। तो आप राइट हैंड साइड देखो क्या है, आपका राइट हैंड साइड क्या था शुरू में, n 2n-1, मतलब आपके पास राइट हैंड साइड में आना क्या चाहिए अगर आप m+1 डालोगे, ये आना चाहिए ना आपके पास। ओके, तो आप दिमाग में रखना कि मेरे राइट हैंड साइड में ये आना चाहिए जब मैं m+1 डालूंगा n की जगह, ये रखना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। सो ये कितना हो जाएगा, 2m² - m प्लस 4m + 4 - 3, ठीक है। 2m² ऐसे आ जाएगा, और कोई लाइक टर्म है यहाँ पे, देखो प्लस 3m, ओके, एंड देन दिस वाज 4 - 3, आपके पास आ जाएगा 1। अब जब आप इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो आपको पता लगेगा, आप क्या कर सकते हो इसको, 2m² + 2m + m + 1, इसे मैंने 2 + 1 के रूप में स्प्लिट कर दिया अगर आप देखोगे, एंड देन m कैन बी कॉमन आउट, 2m कैन बी कॉमन आउट, तो क्या बचा m+1, इधर 1 कैन बी कॉमन आउट, तो m+1, तो मेरे पे क्या आ गया, m+1 आउटसाइड एंड 2m + 1, ओके। और मुझे यही लेके आना था, ये देखो यहाँ पे यही लेके आना था मुझे, अगर मेरा ये आंसर आ गया मतलब हैंस प्रूव्ड, ओके। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करो, इक्वल साइन लिखो, इक्वल साइन, बट वी डोंट राइट दिस, बट आप लिख सकते हो टिल फॉर सम ऑफ द क्वेश्चन इन द स्टार्टिंग दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। तो आपका इस तरफ क्या था, आपका अगर आप देखो n 2n - 1, और आपने m+1 पुट किया था, तो आपका क्या आना चाहिए, m+1 और फिर 2 ब्रैकेट m+1 - 1, ठीक है। सो आप m+1 और फिर 2m + 2 - 1, तो आपके पास क्या आना चाहिए, m+1 2m + 1, सो आपके पास ये आना चाहिए, इस साइड भी जब सॉल्व कर दोगे ये आना चाहिए, ओके। और अगर आप देखोगे यहाँ पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, मतलब हैंस प्रूव्ड, तो क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड। आपको कुछ नहीं करना है, मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है, so that you guys can understand very clearly, and trust me, this are not as tough as the previous chapter that you guys were getting complicated. We'll do one more example. We'll do example number 6, okay, example 6 we can do. So squaring है उसमें, इसलिए we'll do proof by induction method, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब इक्वल्स टू ब्रैकेट n + 1 to whole square. Now I'll prove it for 1, okay, I'll prove it for 1. So P1 कितना आएगा, लेट्स सी, अगर इधर 1 डालेंगे, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे, 1 ही डाल रहा हूँ मैं, 1 का क्यूब 1 होता है, इक्वल्स टू उस तरफ भी 1 आना चाहिए, पर मैं 1 n की जगह 1 डाल के देखूंगा 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर 1 आ रहा है तभी आई विल कंटिन्यू फॉरवर्ड, ओके। 1 + 1
So I can write true for P1. Is it true for P1? If you agree, then only I can move forward. Okay, so it's true for P1. ओके मैंने P1 डाला, इस तरफ 1 ही डालोगे आप. ओके 1 ही आना चाहिए, तो उस तरफ भी n की जगह P1 डालोगे. सो आई विल से लेट इट बी ट्रू फॉर PM. और आप K भी ले सकते हो, जरूरी नहीं M लेना है, आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो. ओके लेट्स डू इट फॉर K. Let's do it for K, not do it for M. If you see in NCERT books or CBSE schools, they prove it for K. Even in the forward questions, you'll have to you can take any variable. Okay, it's not necessary M ही लेना है हमेशा. ठीक है. If you take some other variables, I feel like there will be a change and you'll be able to understand and do it on your own. So जब भी आप examples try करते हो, आप K लेके करना, आप M लेके मत करना, चाहे बुक में भी M दे रखा है. सो इट विल बी लाइक यू डिड दैट क्वेश्चन एंड यू अंडरस्टूड दैट क्वेश्चन. सो तो जब मैं K डालूंगा, K की क्या होगी वैल्यू? लेट इट बी ट्रू फॉर K. सो इट वुड बी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 K क्यूब इक्वल्स टू K bracket K plus 1 bracket close and whole bracket square upon 2. ओके नाउ जहाँ भी आपको K दिख रहा है, अब आप K plus 1 लोगे. क्या लोगे? एक बाद वाला K के एक बाद वाला. सो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 K का क्यूब. पर K के बाद क्या आता है? K plus 1 का क्यूब. अगर ये 3 है फिर ये 4 है. 3 फिर 3 plus 1 4. Okay, that's why I'm writing like this. And this is equation 1. Which is this equation? 1. Okay, equals to, वैसे लिखते नहीं है राइट हैंड साइड, बट आई एम राइटिंग राइट हैंड साइड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. मेरा आना क्या चाहिए? K plus 1 स्क्वायर इधर आ जाएगा. ओके और फिर K की जगह क्या आ जाएगा? K plus 1 और 1 ऑलरेडी है, स्क्वायर इधर आ जाएगा अपॉन 2. 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. मैं बस इधर ऐसी लिख रहा हूँ K plus 1 होल स्क्वायर और K plus 2 होल स्क्वायर अपॉन 4. ओके हमें ये लेके आना है इस साइड. ओके आई होप यू अंडरस्टूड हाउ डिड इट कम. इधर की जगह मैंने K plus 1 डाला और ये स्क्वायर इसके पास चला गया. देखो जब ब्रैकेट खुलेगा तो इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास जाएगा. ये तो K नहीं रहा, ये K plus 1 हो गया. ये भी K नहीं रहा, ये K plus 1 हो गया. ठीक है. सो इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है. यहाँ देखो इसकी वैल्यू देर की है इक्वल्स टू दिस. तो मैं इसके जगह इतने की जगह ये डाल दूंगा. आई विल पुट दिस वैल्यू. सो दैट इज K plus 1 ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस K plus 1 का होल क्यूब. Okay, I hope you guys all agree with me. Okay, now tell me what is common in both of them. I see there is something common, that is K plus 1 का होल स्क्वायर. वो इसमें भी है, ये एक टर्म है, ये दो टर्म है, दूसरी टर्म है. तो K plus 1 क्यूब है, इसमें K plus 1 का स्क्वायर भी है, इसमें भी स्क्वायर है. इधर लिख रहा हूँ मैं. ठीक है, दोनों को दे दे रहा हूँ स्क्वायर. चलो मैं स्क्वायर बांट ही देता हूँ. ये स्क्वायर उधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो नीचे वाला 4 हो जाएगा. तो इधर क्या बचा? K स्क्वायर अपॉन 4 प्लस K plus 1 बचा. यहाँ 2 ब्रैकेट तो चलेगा, एक ब्रैकेट बचा और एक ब्रैकेट लिख दिया मैंने. ठीक है, अब K plus 1 का होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा आपका एलसीएम निकालोगे K स्क्वायर प्लस 4K plus 1 upon 4. Now if you see, this is a formula for something, A square plus B square plus 2AB. So किसका फॉर्मूला है ये? K. अगर आपको वैसे नहीं करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, बट यू डोंट हैव टू डू दैट. ओके सो दिस विल बी K plus K plus 2 का फॉर्मूला है ये. 4 आएगा इधर, सॉरी. K plus 2 का फॉर्मूला है ये, का होल स्क्वायर upon 4. Now 4 is getting multiplied with this also, so I can write in just one as just one denominator. Okay, so if you see this side, is it same like this side? Yes, it is. है ना, K plus 1. So I can say
hence proved. ओके, सो व्हाट यू कैन डू ऑल ऑफ यू गाइस, सी हमें कुछ नहीं करना, हमें आधी इक्वेशन की वैल्यू तो फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगी, फिर इसको आगे सॉल्व ही करना है बस आपके दिमाग में होना चाहिए आपका आंसर क्या आना चाहिए। हाँ, आप लिखोगे नहीं वैसे, आई एम जस्ट टेलिंग you guys to write in some of the questions so that you guys can practice. What you can do, you can write this in rough and keep it in your head कि आपको लेके क्या आना है, और आप उसकी तरफ बढ़ते रहो जब तक आपका आंसर आया नहीं। ठीक है, सो दिस इज what you have to bring and you can write hence proved. Okay guys, thank you, and I hope you'll be able to do some questions now on your own. Please try doing, and if you have any problem, please do ask and I can help you guys. Thank you so much.